आई थिंक हमें थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना था ब्रो। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं तमेन भूतले स्वयं जाति वन्देऽहं श्रीगुरु वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीचैतन्यकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखां नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णाप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पत्रयोधस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे Hare Krishna. So today we'll be starting the 4th chapter, the appearance of Sri Narada. So text 1, Vyasdev said, on hearing Sutta Goswami speaks thus, Sonaka Muni, who was the elderly learned leader of all the rishis engaged in the prolonged sacrificial ceremony, congratulated Sutta Goswami by addressing him as follows. Sonaka said, O Sutta Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by the great and powerful sage Sukadeva Goswami. Text 3. In what period and at what place was this first begun, and why was this taken up? From where did Krishna Dvaipayana Vyas, the great sage, get the inspiration to compile this literature? Text 4. His Vyasdeva's son was a great devotee and equivalence monist whose mind was always concentrated in monism. He was transcendental to mundane activities, but being unexposed, he appeared like an ignorant man. Text 5. While Shri Vyasdev was following his son, beautiful young damsels who were bathing naked covered their bodies with cloth, although Shri Vyasdev himself was not naked. But they had not done so when his son had passed. The sage inquired about this, and the young ladies replied that his son was purified and when looking at them made no distinction between male and female, but the sage made such distinctions. ये एक्चुअली तुकाराम प्रभु एक बार बताते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो हमेशा राधा रानी के और भगवान के चरणों के मूड में ऐसा व्यस्त रहते हैं कि जब वो क्रॉस करके जा रहे हैं तो वो जो महिलाएं हैं उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है और ये चीज पूछ रहे हैं व्यासदेव से. टेक्स्ट 6. How was he, Srila Sukadev, the son of Vyas, recognized by the citizens when he entered the city of Hastinapur, now Delhi, after wandering in the provinces of Kuru and Jangala, appearing like a madman, dumb and retarded? Text 7. How did it so happen that King Parikshit met this great sage, making it possible for this great transcendental essence of the Vedas, Bhagavatam, to be sung to him? Text 8. He, Sukadev Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. Text 9. It is said that Maharaj Parikshit is a great first class devotee of the Lord and that his birth and activities are all wonderful. Please let us tell about him. Text 10. He was a great emperor and possessed all the opulences of his acquired kingdom. He was so exalted that he was increasing the prestige of the Pandu dynasty. Why did he give up everything to sit down on the bank of Ganges and fast until death? Text 11. He was such a great emperor that all his enemies would come and bow down at his feet and surrender all their wealth for their own benefit. He was full of youth and strength. He possessed kingly opulences that were difficult to give up. Why did he want to give up everything, including his life? Text 12.
Those who are devoted to the cause of personality of Godhead live only for the welfare, development, and happiness of others. They do not live for any selfish interest. So even though the emperor Parikshit was free from all attachment to worldly positions, how could he give up his mortal body, which was the shelter of others? Text 13. We know that you are the expert in the meanings of all subjects except some portions of the Vedas, and thus you can clearly explain the answers to all the questions we have just put to you. So, text 14, Sutta Goswami said, when the second millennium overlapped the third, the great sage Vyasdev was born to Parasar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. Text 15. Once upon a time, he, Vyasdev, as the sun rose, took his morning ablution in the waters of Saraswati and sat alone to concentrate. Text 16. The great sage Vyasdev saw anomalies in the duties of millennium. This happens on the earth in different ages due to an unseen force of time. Text 17 and 18. The great sage, who was fully equipped in knowledge, could see through his transcendental vision of deterioration of everything material due to the influence of the age. He could also see that the faithless people in general would be reduced in duration of life and would be impatient due to lack of goodness. Thus, he contemplated for the welfare of man in all statuses and orders of life. Text 19. He saw that the sacrifices mentioned in the Vedas were means by which the people's occupation could be purified. And to simplify the process, he divided the one Veda into four in order to expand them among men. Text 20. The four divisions of the original sources of knowledge, the Vedas, were made separately, but the historical facts and authentic stories mentioned in the Puranas are called the fifth Veda. Text 21. After the Vedas were divided into four divisions, Paila Rishi became the professor of the Rig Veda, Jaimini the professor of Sham Veda, and Vaisampayana alone became glorified by the Yajur Veda. Text 22. The Samantu Muni Angira, who was very devotedly engaged, was entrusted with the Atharva Veda, and my father Romharsana was entrusted with the Puranas and historical records. All these learned scholars, in their turn, rendered their entrusted Vedas onto their many disciples, grand disciples, and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. Text 24. Thus, the great sage of Vyasdev, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. Text 25. Out of compassion, the great sage thought it wise that it would enable man to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled the great historical narration called the Mahabharata for women, laborers, and friends of the twice born. Bro, इसमें जो twice born है इसका मतलब वो initiated devotees को बोला जाता है क्या? कोई बता सकता है twice born का मतलब क्या होता है? Initiated devotees होते हैं क्या? क्योंकि बोला जाता है जो men होते हैं वो ट्वाइस बॉर्न का मतलब द्वितीय होता है। वो ट्वाइस बॉर्न मतलब इनिशिएशन, ब्राह्मण इनिशिएशन लेते हैं तो वो ट्वाइस बॉर्न हो जाता है। ब्रह्मचारी जो वही कह बनते रहा हूँ हैं जो जिसका बिना माँ इनिशिएशन बाप होता है वही के, तो कह रहा हूँ जिसका इनिशिएशन होता है। ओके हाँ ओके ब्रह्मचारी इनिशिएशन, ब्राह्मण इनिशिएशन जो होता है उसका वो ठीक है। ट्वाइस बॉर्न होता है। तो वो वेदों पढ़ने, साइंटिफिक नॉलेज एक्वायर करने के स्टेट में आ जाते हैं। नॉर्मल इनिशिएशन होने को भी तो ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं ना, जो गृहस्थ होते हैं उनका भी ट्वाइस नहीं बॉर्न नहीं होता नहीं, है। हरिनाम इनिशिएशन ट्वाइस बॉर्न नहीं होता है। आप ब्राह्मण इनिशिएशन लोगे, ओह ब्रह्मचारी लोगे, तब आपका ट्वाइस बॉर्न ओके होता है। ओके। Thank you. Text 26. O twice born Brahmanas, still his mind was not satisfied, although he engaged himself in working for the total welfare of all people. Text 27. Thus the sage, being dissatisfied at heart, at once began to reflect because he knew the essence of religion, and he said within himself, text 28 and 29, I have, under strict disciplinary vows, unpretentiously worshipped the Vedas, the spiritual master, and the altar of sacrifice. I have also abided by the rulings and have shown the import of disciplic succession through the explanation of the Mahabharata, by which even women, Shudras, and other friends of the twice born can see the path of religion. I am feeling incomplete, though I myself am fully equipped with everything required by the Vedas. Text 21. This may be because I did not specifically point out the devotional service of the Lord, which is dear both to perfect beings and to the infallible Lord. Text 32. As mentioned before, Narada reached the cottage of Krishna Dvaipayana Vyasa on the banks of Saraswati just as Vyasdeva was regretting his defects. Text 33. At the auspicious arrival of Sri Narada, Sri Vyasdev
got up respectfully and worshipped him, giving him veneration equal to that given to the Brahmaji, the creator. Hare Krishna. Anyone else can read from here? Like, जैसे कि जो कल नहीं पढ़े थे वो भी पढ़ ठीक है प्रभु, मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर जी पढ़िए. okay. Narada's instruction on Srimad Bhagavatam for Vyasadeva. Text 1. Suta Goswami said, thus the sage amongst the god Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi among the Brahmanas, Vyasadeva. Text 2. Addressing Vyasadeva, the son of Parasara, Narada inquired, are you satisfied by identifying with the body or the mind as object of the self-relation? Text 3. Your inquiries were full and your studies were also well fulfilled. And there is no doubt that you have prepared a great and wonderful work, the Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences elaborately explained. Text 4. Prabhuji, okay. So you have fulfilled, delineated the subject of impersonal Brahman as well as the knowledge derived therefrom. Why should you be despondent in spite of all this, thinking that you are undone, my dear Prabhuji, my dear Prabhu? Text 5. Sri Vyasadeva said, all you have said about me is perfectly correct. Despite all this, I am not pacified. I therefore question you about the root cause of my satisfaction. For you are a man of unlimited knowledge due to your being the offspring of one Brahma who is self-born without mundane father and mother. Text 6. My lord, everything that is mysterious is known to you because you worship the creator and the destroyer of the material world and the maintainer of the spiritual world, the originally personality of Godhead, who is transcendental to the three modes of material nature. Text 7. Like the sun, your goodness can travel everywhere in this three world, and like air, you can penetrate in the internal region of everyone. As such, you are as good as the all pervasive super soul. Please therefore find out the deficiency in me, despite my being absorbed in the transcendence under disciplinary regulation and vows. Text 8. Sri Narada said, you have not actually broadcast the sublime and spotless glories of personality of Godhead. That philosophy which doesn't satisfy the transcendental senses of the Lord is considered worthless. Text 9. Although great sage, you have very broadly described the four principles beginning with the religious performances. You have not described the glories of the supreme personality Vasudeva. Text 8. Those words which do not describe the glories of the Lord, yeah, who alone can sanctify the atmosphere of the whole universe, are considered by a saintly person to be like unto a place of pilgrimage for crows. Since all the perfect persons are inhabitants of the transcendental abode, they do not derive any pleasure there. Text 11. On the on the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, and pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation, full of transcendental words directed towards the beginning about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though हरे कृष्णा. हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हाँ जी ब्रो, धन्यवाद. तुकार प्रभु जी आ गए. ओके ओके. हाँ, आप लोग कंटिन्यू करिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ प्रभु जी, आप वो एक्सप्लेन करने वाले थे ना, वो वाला लगाऊं? आप वो इनकारनेशन एक्सप्लेन करने वाले थे ना. आप लोग पढ़ो, पहले एक सेक्शन पढ़ो, मैं हूँ सुन रहा हूँ. अभी जस्ट एक मीटिंग हाँ जी हाँ जी. हूँ, आप लोग शुरू करो. जी जी जी. ओके. जी 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 धन्यवाद. Yeah. Of text 11, such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men
thoroughly honest. Text 12. Knowledge of self-relation, even though free from yeah, knowledge of self-relation, even though free from all material affinities, doesn't look well if devoid of a conception of the infallible God. What then is the use of fruitive activities, which are naturally painful from the very beginning and transient by nature, if they are not utilized for the devotional service of the Lord? If text 13, O Vasudeva, your vision is completely perfect, your good fames is spotless, you are firm in vow and situated in the truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in the trains for the liberation of the people in general from all material bondage. Text 14. Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names, and results. So to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place. Text 15. The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is very condemned and in quite unreasonable, because they are guided under your instructions. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for provisions. Text 16. The Supreme Lord is unlimited, only a very expert personality retired from the activities of material happiness deserve to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the way of transcendental realization by your goodness through description of the transcendental activities of the Supreme Lord. Text 17. One who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage, yet there is no danger in his being unsuccessful. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, doesn't gain anything. Text 18. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness derived from the sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we don't desire them. Text 19. My dear Basha, even though a devotee of Lord Krishna sometimes fall down somehow or other, he certainly doesn't undergo material existence like others, fruitive workers, etc. Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember the ecstasy again and again. Text 20. The Supreme Lord Personality of Godhead is himself the cosmos, and still yeah and still he is aloof from it. From him, one has this cosmic manifestation emanated. In him, it rests, and unto him it enters after annihilation. Your good self knows all about this. I have given only a synopsis. Text 21. Your goodness has perfect vision. You yourself can know the super soul personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of the people. Please therefore describe the transcendental pastime of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, more vividly. Text 22. Learned circle have positive concluded that the infallible people of the advancement of the knowledge, namely austerities, study of the Vedas, sacrifice, chanting of Haman, and charity, culminate in the transcendental description of the Lord, who is defined in choice poetry. Text 23. O Muni, in the last millennium, I was born as the son of certain maid servant engaged in the service of the Brahmanas who were following the principles of Vedanta.
when they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. Text 24. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not nutty. I didn't speak more than required. Text 25. Once only by their permission, I took the remnants of their food, and by doing so, all my sins were at once eradicated. Thus, by engaged, I become purified in heart, and at that time, the very nature of the transcendentalist became attractive to me. Text 26. O Vyasadeva, in that association and by the mercy of the great Vedantist, I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing of the personality of Godhead increased at the every step. Text 27. O great sage, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, my attention to hear the Lord was unflinching, un, unflinching, and as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance that I had accepted gross and subtle coverings both for both Lord and I are transcendental. Text 28. Thus, during two reasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear these great souled sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. As the follow as the flow of my devotional service began, the covering of the modes of passion and ignorance vanished. Text 29. I was very much attached to those sages. I was gentle in behavior, and all my sins were eradicated in this service. In my heart, I had strong faith in them. I had subjugated the senses, and I was strictly following them with body and mind. Text 30. As they were living those Bhakti Vedantas who are very kind to poor-hearted souls, instructed me in that most confidential subject, which is instructed by the personality of Godhead Himself. Text 31. By that confidential knowledge, I could understand clearly the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, and the annihilator of everything. By knowing that, one can return to him and personally meet him. Text 32. O Brahmana Vyasadeva, it is decided by the yeah, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activity to the service of the Supreme Lord Personality of Godhead Sri Krishna. Text 33. O God's soul, doesn't doesn't a thing applied therapeutically cure a disease which was caused by the very same thing? Very same thing. Text 34. Thus, when all the man's activity are dedicated to the service of the Lord, those very activities which caused him perpetual bondage become the destroyer of the tree of work. Text 35. Whatever work is done here in this life for the satisfaction of the mission of the Lord is called Bhakti Yoga, or transcendental loving service to the Lord. And what is called knowledge become a concomitant, yeah, concomitant for, sorry bro, concomitant factor. Text 36. While performing duties according to the order of Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, one constantly remembers him and his names and his qualities. Text 37. Let us all chant the glories of Vasudeva along with his plenary expansion, Pradyumna, Aniruddha, and Sankarsana. Text 38. Thus, he is the actual seer who worships in the form of transcendental sound representation, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, who has no material form. Text 39.
O Brahmana, thus by the Supreme Lord Krishna, I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord as inculcated in the confidential parts of the Vedas, then with the spiritual opulence, and then with his intimate loving service. Text 40. Please there, yeah. Please therefore describe the Almighty Lord's activity which you have learned by your vast knowledge of the Vedas, for that will satisfy the hankerings of the great learned men, and at the same time mitigate the miseries of the masses of the common people who are always suffering from material pangs. Indeed, there is no other way to get out of such miseries. Hari Om. May I read it too? Vipul, Yes, please. Hare Krishna. Hare Krishna, Guruji. Please continue. Chapter 6, Conversation between Narad and Vyasadev. Text 1. Sut Goswami said, O Brahmanas, thus hearing all about Sri Narada's birth and activities, Vyasadev, the incarnation of God and son of Satyavati, inquired as follows. Text 2. Sri Vyasadev said, what did you, Narada, do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? Text 3. O son of Brahma, how did you pass your life after initiation, and how did you attain this body, having quite your old one in due course? Text 4. O great sages, time annihilates everything in due course, so how is it that this subject matter, which happened prior to this day of Brahma, is still fresh in your memory, undisturbed by time? Text 5. Sri Narada said, the great sages who had imparted scientific knowledge of transcendence to me departed for other places, and I had to pass my life in this way. Text 6. I was the only son of my mother, who was not only a simple woman but a maid servant as well. Since I was her only offspring, she had no other alternative for protection. She bound me with the tie of affection. Text 7. She wanted to look after my maintenance properly, but because she was not independent, she was not able to do anything for me. The world is under the full control of the Supreme Lord. Therefore, everyone is like a wooden doll in the hands of a puppet master. Hmm. Text 8. When I was a mere child, when I was a mere child of 5 years, I lived in a Brahmana school. I was dependent on my mother's affection and had no experience of different lands. Text 9. Once upon a time, my poor mother, when going out one night to milk a cow, was bitten on the leg by a serpent influenced by supreme time. Text 10. I took this as the special mercy of the Lord, who always desires benediction for his devotees, and so thinking I started for the north. Text 11. After my departure, I passed through many flourishing metropolises, towns, villages, animal farms, mines, agricultural lands, valleys, flower gardens, nursery gardens, and natural forests. Text 12. I passed through hills and mountains full of reservoirs of various minerals like gold, silver, and copper, and through tracts of land with reservoirs of water filled with beautiful lotus flowers, fit for the denizens of heaven, decorated with bewildered bees and singing birds. Text 13. I then passed alone through many forests of rushes, bamboo, reeds, sharp grass, weeds, and caves, which were very difficult to go through alone. I visited deep, dark, and dangerously fearful forests, which were the play yards of snakes, owls, and jackals. Text 14. Thus traveling, I felt tried
both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took a bath in a river lake and also drink water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. Exhaustion. Text 15. After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate upon the, the okay, meditate upon the super soul situated within, using my intelligence as I had learned it from liberated souls. Text 16. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes, and without delay the personality of Godhead Sri Krishna appeared on the lotus of my heart. Text 17. O Vyasdev, at that time, being exceedingly overpowered by feelings of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Text 18. The transcendental form of the Lord, as it is, satisfies the mind's desires and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. Text 19. I desired to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempts to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. Text 20. Seeing my attempts in that lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing words, just to mitigate my grief. Text 21. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material tends can hardly see me. Text 22. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. Text 23. By service of the absolute truth, even for a few days, a devotee attains firm and fixed intelligence in me. Consequently, he goes on to become my associate in the transcendental world after giving up the present deplorable material world. Text 24. Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time, even at the time of creation as well as at the time of annihilation. Your remembrance will continue by my mercy. Text 25. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking, feeling a sense of gratitude. I offered my obeisances unto him, bowing my head. Text 26. Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble, and unenvious. Text 27. And so, O Brahmana Vyasadev, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna and who therefore had no attachments, being completely free from all material ties, met with death as lightning and illumination occur simultaneously. Text 28. Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body uh, made of five material elements, and thus all acquired fruitive results of work karma stopped. Text 29. At the end of the millennium, when the personality of Godhead, Lord Narayana,
lay down within the water of devastation, Brahma began to enter into him along with all creative elements, and I also entered through his breathing. Text 30. After I cannot read through it. After this much solar year, okay, I will try to read. Okay. Okay, after this much 430 solar crores year, है 430 crores है 430 crores 430 crores या 4 billion कितना है 3 proof? 430 crores है Just proof. 4.3 billion ना हम्म 430 करोड़ से ना जी okay, thank you bro. After 430 crore solar years, when Brahma awoke to create again by the will of the Lord, all the rishis like Marichi, Angira, Atri, and so on were created from the transcendental body of the Lord, and I also appeared along with them. Text 31. Since then, by the grace of the Almighty Vishnu, I travel everywhere without restriction, both in the both in the transcendental world and in the three divisions of the material world. This is because I am fixed in the unbroken devotional service of the Lord. Text 32. And thus I travel constantly singing the transcendental messages of the glories of the Lord, vibrating this instrument called a veena, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Text 33. The Supreme Lord Sri Krishna, whose glories and activities are pleasing to hear, at once appears on the seat of my heart as if called for as soon as I began to chant his holy activities. Text 34. It is, it is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the personality of Godhead. Text 35. It is true that by practicing restraint of the senses by the yoga system, one can get relief from the disturbances of desire and lust, but this is not sufficient to give satisfaction to the soul. For this, satisfaction is derived from devotional service to the personality of Godhead. Text 36. O Vyasdev, you are freed from all sins. Thus I have explained my birth and activities for self-realization as you asked. All this will be conducive for your personal satisfaction also. Text 37. Sud Goswami said, thus addressing Vyasdev, Sri Narad Muni took leave of him and vibrating on his Veena instrument, he left to wander at his free will. Text 38. All glory and success to Sri Narad Muni because he glorifies the activities of the personality of Godhead, and so doing, he himself takes pleasure and also enlivens all the distressed souls of the universe. Krishna. तो हरे कृष्णा नहीं तुकाराम प्रभु जी अगर आप फ्री हो गए हो तो फ्री हूँ, मैं तो सुन रहा हूँ। बताइए आप लोग को क्या प्रश्न है? वो जो लिस्ट बताया गया तो थोड़ा सा निकालिए थर्ड चैप्टर। जी ये वाला थोड़ा सा अगर आप बता देते हैं यहाँ से लाइक फर्स्ट पहले कौन आया सेकंड कौन आया मतलब सेकंड क्योंकि एक वराहदेव हैं और थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था क्योंकि वराहदेव तो इनके बाद आते हैं जो समुद्र मंथन के बाद आते हैं नॉर्मली हम जानते थे बीच में फिर इसमें चैतन्य महाप्रभु का भी मेंशन नहीं किया गया है ऐसे बहुत सी चीजें इसमें मतलब हमारी समझ में नहीं आई खोलिए। अच्छा ये रहा।
प्रभु जी मतलब इसमें टोटल 22 इनकारनेशन दिए थे, बट जैसे मेनली ये जो 10 अवतार हैं और जो 22 इनकारनेशन है, इन दोनों में मतलब कैसे क्लासिफाइड किया गया है? और प्रभु जी मैं देख रहा था कि इसमें भी बहुत सारे डिविजन्स हैं, जैसे मतलब पुरुष अवतार हो गया, एक मानव अवतार हो गया, और कुछ मनवंतर। एक्सपेंशन, हाँ मनवंतर, और एक्सपेंशंस भी हैं जैसे वो शंकरशन और हाँ, ये देखिए, ये जो 22 इनकारनेशंस का वर्णन किया गया है यहाँ पे, तो इसमें सब वैरायटी के इनकारनेशंस है। जैसे पुरुष अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, शाक्तवेश अवतार हैं, और लीला अवतार हैं, गुणावतार हैं, और युग अवतार हैं, सभी अवतार। जैसे हाँ, ऊपर जाइए थोड़ा, टेक्स्ट 1 से खोलिए। अच्छा नहीं, टेक्स्ट 6 से ही, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, यही ओके, जाओ ऊपर जाओ, और ऊपर फर्स्ट श्लोक से खोलते हैं। देख, सबसे पहले लिखा, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन द लॉर्ड फर्स्ट एक्सपेंडेड हिमसेल्फ इनटू यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ द पुरुष इनकारनेशन एंड मैनिफेस्टेड ऑल इंग्रेडिएंट्स फॉर द मेटल क्रिएशन। तो ये पुरुष अवतार की बात हो रही है, महाविष्णु की बात हो रही है। उसके बाद में पार्ट ऑफ पुरुषा लाई डाउन विद इन द वाटर ऑफ यूनिवर्स, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्ष विष्णु की बात हो रही है। तो ये भी एक तरह का पुरुष अवतार है। उसके बाद में जिनके फ्रॉम द नेवल लेक ऑफ हिज बॉडी स्प्राउट्स अ लोटस स्टेम एंड फ्रॉम द लोटस फ्लावर्स atop this stem Brahma, the master of all engineers in the universe, become man। ये गर्भोदक सागर के ऊपर गर्भोदक्ष विष्णु है, जो उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है। तो ये भी एक तरह का पुरुष अवतार है। टोटल 6 प्रकार के अवतार होते हैं, पुरुष अवतार और गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, और युग अवतार, और शाक्तवेश अवतार। पुरुष अवतार 3 होते हैं। महाविष्णु, जिनके बॉडी पोर्स से जो बबल्स निकलते हैं, वो एक यूनिवर्स होता है। जब मेटल बॉडी क्रिएशन करना होता है तो भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं महाविष्णु के रूप में, और वो कॉजल ओशन, कारण सागर में लेट जाते हैं, जिनके बॉडी पोर्स से यूनिवर्स निकलते हैं। फिर एक एक यूनिवर्स के अंदर वो आधा भर देते हैं अपने स्वेट से, और उसके ऊपर लेट जाते हैं, और वहां पे जो विष्णु लेटते हैं उनको गर्भोदक्ष विष्णु कहते हैं, और समुद्र को गर्भोदक सागर कहते हैं। तो ये भी एक तरह का पुरुष इनकारनेशन है। सभी एटम और मॉलिक्यूल के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, और ओशियन ऑफ मिल्क के ऊपर भगवान रहते हैं, उसको कहते हैं क्षीरोदीक्षाई विष्णु। हमारे हृदय में, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में जो भगवान रहते हैं वो क्षीरोदीक्षाई विष्णु रहते हैं। तो वो भी एक तरह का पुरुष अवतार, सुपर सोल जिसको कहते हैं। 3 हो गए पुरुष अवतार। और गुण अवतार होता है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। सत्वगुण में विष्णु, रजोगुण को मेंटेन करते, कंट्रोल करते ब्रह्मा, और तमोगुण को मेंटेन करते, कंट्रोल करते हैं शिव जी। तो ये हो गया गुण अवतार। युग अवतार मतलब जो अलग अलग युगों में जो भगवान आते हैं। सतयुग में भगवान आते हैं हंस के रूप में, अभी इस लिस्ट में हंस नहीं है। त्रेता युग में भगवान आते हैं यज्ञ के रूप में, तो यज्ञ का अवतार इस लिस्ट में नहीं है। और द्वापर युग में भगवान आते हैं कृष्ण के रूप में, जो कृष्ण द्वापर युग के युग अवतार भी है। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु। तो युग अवतारों का वर्णन इस लिस्ट में प्रैक्टिकली नहीं है। उसके बाद में लीला अवतार में भगवान राम, भगवान कृष्ण, नरसिंह, ये सब लीला अवतार है, लीला करने के लिए आते हैं, तो उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद उसे लीला अवतार कहते हैं। और शाक्तवेश अवतार मतलब कोई जीव होता है लेकिन विशेष शक्ति प्राप्त किया भगवान। जैसे यहाँ पे आएगा टेक्स्ट नंबर 3, 4, कहाँ गया, जब आएगा कुमार, 4 कुमारास, टेक्स्ट नंबर, हाँ ये 6 में, 4 अनमैरिड सन्स ऑफ ब्रह्मा, कुमारास। तो ये लोग हैं शाक्तवेश अवतार। ये विष्णु नहीं है, लेकिन ये विष्णु की स्पेशल शक्ति है इनके अंदर,
या शाक्तावेश अवतार का उदाहरण है व्यासदेव। व्यासदेव का भी यहाँ पे लिखा गया है लिस्ट में। शाक्तावेश शक्ति आवेशित अवतार कहते हैं। और मनवंतर अवतार का एग्जाम्पल है, जैसे जब किसी स्पेशल पर हर मनु में चेंज होता है पूरा, डेमी गॉड चेंज होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु। मनु कैसा होता है, जैसे मानो फैक्ट्री में शिफ्ट लगती है तो पूरी शिफ्ट जब चेंज होती है तो हर कर्मचारी चेंज हो जाता है, मैनेजर उसमें दूसरा आता है, दूसरा सुपरवाइजर आता है, दूसरी लेबर आती है, सब चेंज हो जाते हैं हर शिफ्ट में। उस तरीके से जब ब्रह्मा के एक दिन में 14 बार शिफ्ट चेंज होती है तो हर शिफ्ट में भगवान का एक अवतार होता है, उसको मनवंतर अवतार कहते हैं। इस मनवंतर का, जिसमें अभी हम हैं, उसके मनवंतर अवतार है वामन देव। तो वामन देव का वर्णन यहाँ पे इस लिस्ट में है, जिनको 8 कैंटो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो इस प्रकार से 6 कोई बचा क्या? गुण अवतार, लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शाक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार और जुग अवतार। तो 6 की कैटेगरी में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। 24 अवतार बोलते हैं और 22 अवतार बोलते हैं और 10 अवतार बोलते हैं। और उसके बोलने के बाद में इसी लिस्ट के लास्ट में भगवान व्यासदेव बोल रहे हैं कि अवतारा नाम या संख्या नाम, बहुत सारे असंख्य अवतार होते हैं, आप गिन भी नहीं सकते कितने होते हैं। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि ये लिस्ट किस हिसाब से है। ये शुद्ध गोस्वामी प्रेजेंट कर रहे हैं इस लिस्ट को, श्री व्यासदेव प्रेजेंट कर रहे हैं इस लिस्ट को। तो इसमें इस तरह कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मेंटेन नहीं किया गया है, जस्ट एक जनरल लिस्ट दी गई है, भगवान अवतार लेते हैं इस तरीके। और उस लिस्ट में फिर लास्ट में बोल दिया एते चांद कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस लिस्ट में जब भी भगवान के अवतार है तो अवतार है, तो अवतारों के अवतार है। अब वराह देव का जैसे एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा है 7th में, सुप्रीम इंजॉयर ऑफ वराह देव कब आए थे? कौन बोला? समुद्र मंथन में वराह देव आए। समुद्र मंथन में कूर्म देव आए थे, मत्स्य आए थे, वराह आए उनके थे बाद जब... जी पहले हाँ नहीं पहले मतलब पहले जो कौन? हम देखते हैं, पहले मीन आए थे, फिर वराह आए थे, फिर सॉरी मीन आए थे, उसके बाद कूर्म, कूर्म के बाद वराह, वराह के बाद हिरण्य, ये नरसिंह आए थे। ऐसा मतलब 10 अवतार में लिखा है। तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता? एक मिनट देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, तो ये जो 10 अवतार स्त्रोत में लिखा है, सेकंड में लिखा है कूर्मा, थर्ड में लिखा है वराह, है ना? ये आपका पॉइंट है ना? इस लिस्ट में क्या दिया है इसमें प्रभु जी यहाँ पर सेकंड इंकारनेशन में वराह आ रहे हैं और बहुत टाइम बाद नीचे आते हैं, कूर्म और मीन बहुत नीचे आते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ हाँ, उसका एक कारण है कि इसमें क्रोनोलॉजी नहीं है इस लिस्ट में। दूसरा कारण ये है कि इस लिस्ट में जैसे मान लो वराह देव की जो लीला है वो 3rd कैंटो में आई है, ठीक है, और मीन की लीला आई है 8th कैंटो में, कूर्म की लीला आई है 8th कैंटो में। तो क्रोनोलॉजी नहीं है में भागवतम में, पूरी भागवतम में क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं करी गई है। भागवतम इतिहास नहीं है, भागवतम में क्रोनोलॉजी नहीं है। भागवतम में शुकदेव गोस्वामी से जो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, उस प्रश्न के हिसाब से शुकदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं। अब आप 1st कैंटो में भी जो आप 7th चैप्टर खोलने वाले हैं वो आएगा सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड, तो ये तो 1st कैंटो में पूछने का लॉजिक ही नहीं है। लेकिन 1st कैंटो में क्या कर रहा है वो? हाँ, क्रोनोलॉजी नहीं मेंटेन हो रही है, ऐसा नहीं है कि क्रोनोलॉजी के हिसाब से सब चीज चल रही है यहाँ पे, समझ आ रहा है? जो सेक्शन, जो क्वेश्चन से पूछे परीक्षा में, उस हिसाब से वो वहाँ पे उनका अंडरस्टैंडिंग मतलब बता रहे हैं, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए। क्रोनोलॉजी नहीं है। 3rd कैंटो में वराह देव की घटना है। उदाहरण के तौर पर 3rd कैंटो में मैत्री और विदुर का संवाद है, तो वहां पे अचानक से वराह देव की कथा आ गई है। फिर वो वराह देव की कथा आने के बाद में बताया कि भगवान ने वराह देव का अवतार लिया, उसने हिरण्याक्ष को मारा,
फिर हिरण्यक्ष तक बात की कथा आती है, हिरण्यक्ष के भाई किस तरह रिवेंज लिया 7th कैंटो में आती है, फिर भगवान ने नरसिंह दे दिया, जबकि वराह अवतार के बाद में नरसिंह अवतार हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? अब देख लो ना, वराह अवतार में भगवान ने हिरण्यक्ष को मारा, उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने रिवेंज करने के लिए कोशिश करी, फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा, तुरंत हुआ है। जी 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 जी। अच्छा क्रोनोलॉजी प्रभु जी नहीं है। मनवंतर, हाँ बोलो। हाँ बोल दीजिए प्रभु जी। हाँ मैं पूछ सकता हूँ। हम्म, मैं पूछ रहा था कि ये जो मनवंतर अवतार में जैसे एक दिन में आप क्या बता रहे थे, उनके ब्रह्मा के कितने 14 शिफ्ट होते हैं? ब्रह्मा के एक दिन में यानी 12 आवर्स में अच्छा ओके 14 मनु होते हैं। ओके। अभी आप लोगों ने पढ़ा, नारद मुनि ने 430000000 इतने साल जी के बाद में जन्म लिया। कोई समझा सकता है उतने साल कैसे आया? जी प्रभु जी। तो जी ये ब्रह्मा का 100 साल है ना? नहीं, ब्रह्मा का मर गए, एक ब्रह्मा बार वहाँ जो ये नहीं मतलब था, ब्रह्मा सो गए थे। जी, क्या है वो कैलकुलेशन, क्या है, संख्या कितनी है वो लिखिए, 430000000 यही है ना? आई थिंक एक मनवंतर के बाद हो सकता है प्रभु जी, एक मनु के बाद। अरे यार तुम लोग कैसे वैसी बातें कर रहे हो? मनु के बाद के ब्रह्मा जी सो जाते हैं क्या? ब्रह्मा जी तो जी सोए ब्रह्मा तो हैं ना, 12 लेकिन एक है ना एक दिन में एक बार साथ सोते हैं ना? प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे। जी, हाँ बोलो। प्रभु जी जैसे मतलब 4 युग होते हैं, तो कल युग में कितना 4,32,000 ईयर होता है। उससे हाँ पहले जो द्वापर युग आता है तो 2 into 4,32,000 ईयर होता है। हाँ उसके पहले करेक्ट, सही त्रेता जा युग रहे हो, आता है, बोलो। 3 into हाँ 4,32,000 ईयर। उसके बाद हाँ सत्य युग, जो पहले सत्य युग आता है तो 4 into 4,32,000, ऐसे करके 10 into 4,32,000 ईयर हो जाते हैं। तो हाँ 4 युगों को मिला के एक महायुग होता है। फिर हाँ 72 महायुगों को मिला के एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर मिला के ब्रह्मा का एक दिन होता है, मतलब 12 तो घंटा ये जिसका। एक दिन का हिसाब है 430000000 या ब्रह्मा के एक जीवन का हिसाब है? नहीं नहीं, ये एक दिन का 12 घंटे का हिसाब है। हाँ, फिर 12 घंटे का रात आता है, तो रात और में 12 घंटे का मतलब एनुलेशन दो होता है। कल्प, 2 कल्प। ये वही समझा रहा हूँ मैं, सिंपल सा हिसाब है, सब लोग नोट डाउन कर लो। 4,32,000 का एक होता है कलयुग, इनको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया चतुर्युग, इंटू 1000 मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया ब्रह्मा जी का 12 घंटे जिस समय सृष्टि चलती है, और बाकी बचे ब्रह्मा जी के 12 घंटे में रात होती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी रात में सो गए हैं, और जब सेकंड डे में उन्होंने सृष्टि करी तब वापस से इनका जन्म हुआ है। किसका? नारद का। समझ आ गया? जी 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 प्रभु जी। अगर पता लगा 4,32,000,000,000,000 वहाँ क्या अच्छा प्रभु जी कैलकुलेशन ये दिया? जो देखो नहीं, पहले चेक करो उसको, फाइनल करो पहले। कितने जीरो दिए थे उसमें? 4 जी 4.3 बिलियन दिया था। जीरो गिना हुआ है। 80 आई थिंक 80 दिए थे प्रभु जी। आई थिंक नहीं, खोल लो ना उसको 2 मिनट। 6 चैप्टर में था ना, खोल लो कितने जीरो, अभी हिसाब हो जाएगा। ब्रह्मा जी का जीवन का कैलकुलेशन किया गया है या प्रभु जी 80 से प्रभु जी 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 2 को जीरो कर दिया ना, 4 3 हो गया ना। कितना हिसाब हो गया ये? 2 को भूल जाओ, 2 को जीरो मान लो राउंड फिगर में, तो कितने जीरो हैं ये? 8 जीरो हैं। तो ये ब्रह्मा का हो गया एक दिन का हिसाब। प्रभु जी यहाँ पे ऐसा लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मा woke up again to create by the will of God। हाँ तो साफ साफ लिखा, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सृष्टि काम करना बंद कर देती है, और आंशिक प्रलय होता है। आंशिक प्रलय का मतलब होता है ऊपर के 3 प्लेनेटरी सिस्टम को छोड़ दो तो बाकी 14 में से 11 प्लेनेटरी सिस्टम डूब जाते हैं। एग्जैक्टली 3 या 4 का हिसाब मुझे नहीं पता, ऊपर के 2-3 प्लेनेटरी सिस्टम छूट जाते हैं, बाकी सब डूब जाते हैं पानी में। तो उस समय में सारी सृष्टि होती है, वो सब बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में रहती है भगवान के शरीर के अंदर, गर्भोदक विष्णु के शरीर के अंदर। और फिर पुनः सृष्टि होती है तो फिर वापस भगवान के थ्रू सारे लिविंग एंटिटी आ जाते हैं। तो ये जो हिसाब दिया गया है साफ साफ हिसाब है, ब्रह्मा जी सो गए, उसके बाद जब जागे उन्होंने फिर से सृष्टि करी है।
मरीचि, अंगिरा और एक्सेट्रा, उसमें नारद को भी ब्रह्मा के पुत्र का रोल मिला है। जो अभी हम नारद जिसको बोलते हैं वो नारद, वो मेड सर्वेंट के नारद पुत्र नहीं है, मतलब पूर्व जन्म पुत्र थे। अभी जो नारद हैं वो ब्रह्मा जी के अभी ब्रह्मा जी चल जगे हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के अभी जगे हुए मतलब तभी तो सृष्टि चल रही है ना, हम हैं। तो इसमें जो हम नारद मुनि एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अभी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो अपने प्रीवियस बर्थ की स्टोरी सुना रहे हैं व्यास देव को। डाउट क्लियर हो गया? जी कोई डाउट है किसी का? जी प्रभु जी। संबित ने बिल्कुल सही पकड़ लिया, संबित बिल्कुल ठीक पकड़ लिया तुमने, ये हिसाब, ये कैलकुलेशन है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। और पूछिए क्या दिक्कत है? अच्छा प्रभु जी, एक्सपेंशन का पूछ रहा हूँ कि पहले कृष्ण एक्सपेंड्स हिमसेल्फ इनटू बलराम, देन प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एंड वासुदेव, ये 4 होते हैं ना चतुर्युग के जो। भगवान कृष्ण से पहले आते बलराम, बलराम से आते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न। ओके। फिर उसके बाद संकर्षण से आते हैं नारायण, फिर नारायण से सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन होता है। वासुदेव सेकंड, संकर्षण सेकंड, अनिरुद्ध सेकंड, प्रद्युम्न सेकंड। फिर वहां सेकंड संकर्षण से एक्सपेंशन होता है महाविष्णु का, और फिर क्रिएशन होता है। अच्छा, और ये पंचतत्व जो है उसमें एक मतलब महाप्रभु और नित्यानंद हो गए कृष्ण एंड बलराम, और अद्वैताचार्य हो गए वासुदेव, महाविष्णु। अच्छा, और श्रीवास पंडित और गदाधर पंडित, गदाधर श्रीमती राधा रानी। ओके, और श्रीवास नारद मुनि। ओके। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आए कि भाई इस 24 लिस्ट में या 22 लिस्ट में चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों नहीं है? कॉमन क्वेश्चन है ये। अरे बहुत सारे अवतारों में भागवतम में आगे आएंगे, हंस अवतार आएगा, यज्ञ अवतार आएगा, और भगवान के बहुत सारे अवतार 8 कैंटो में कई अवतार बीच बीच में आए हैं। कई आप देखिए, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि फलाने राजा के जो पुत्र थे है ना, ही वाज डायरेक्टली द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड। ऋषभ देव का नाम यहाँ नहीं है, पृथु महाराज का का शायद नाम है। ऋषभ का भी नाम है क्या इस लिस्ट में? जी है। तो यहाँ पे कुछ नाम है और कुछ नाम नहीं है, इससे नहीं समझना चाहिए कि वो लिस्ट में नहीं, लिस्ट के बाद साफ साफ से बोल रहे हैं कि बहुत सारे अवतार में से कुछ मैंने गिनाए, जैसे हंस अवतार का नाम इस लिस्ट में है। प्रभु जी, आई थिंक हमने एक श्लोका पढ़ा था कुछ महीने पहले, उसमें मतलब डायरेक्ट दिया गया था, मतलब चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। क्वेश्चन वो नहीं चल रहा, क्वेश्चन चल रहा है 24 की लिस्ट में क्यों नहीं, बस महाप्रभु भगवान है, ये तो क्वेश्चन ऑफ द आउट ऑफ कोर्स ही हो गया, वो तो खैर वो अलग ही है। अभी क्वेश्चन चल रहा है कि 24 की लिस्ट में क्यों नहीं है, लिस्ट में बहुत सारे और नहीं है ना। प्रभु जी मेरा एक डाउट है। बोलिए। प्रभु जी, जो ब्रह्मा के एक दिन 14 मनु होते हैं, तो 14 मनु मतलब एक के बाद एक ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं, राइट? मतलब एक बनते हैं, फिर डिस्ट्रॉय होते हैं, फिर दूसरे बनते हैं, ऐसा होता है? नहीं, 14 मनु क्या होता है? मनु एक पोस्ट है, कल को तुमको मनु की पोस्ट में बिठा देंगे। जी प्रभु जी। है ना, ऐसा नहीं कि वो मरते हैं तो दूसरा ये होता है ना, ये तो प्रधानमंत्री मरेगा तभी दूसरा इलेक्ट होगा, नहीं, वो तो दूसरा अपनी समय से इलेक्ट हो जाएगा भले वो जिंदा रहे। प्रभु जी मतलब कृष्ण के मीन अवतार में जब तो मीन अवतार में उन्होंने मनु को ही मतलब बचाया था, राइट? ब्रह्मा जी का राज चल रहा था, सत्यव्रत मनु को। हाँ बताइए। प्रभु जी ब्रह्मा जी मतलब थोड़ा सा प्रभु जी, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हो? हेलो प्रभु जी, मैं ये बोल रहा था कि हम लोग का जो पिछला वाला कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से मतलब थोड़ा समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है ये चीज। पिछले वाला कॉन्सेप्ट मतलब? प्रभु जी मतलब जैसे मतलब मैं पहले जानता था कि दशावतार में मेन अवतार में कृष्ण आके बचाते हैं
सत्यव्रत मनु को। प्रभु जी यहाँ पे फिर अगर जैसे रात में मतलब प्रभु जी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है कैसा क्या हो रहा है। सिंपल से लॉजिक है। देखो सुखदेव गोस्वामी वहां पे 8 कैंटो में, अभी बताता हूँ मैं, एक हिंट खोल के आपको बताता हूँ। रोशन भी इसी में आ गया है कि तुम अलग से क्लास नहीं करनी पड़ेगी ना। 8 कैंटो का चैप्टर खोल रहा हूं मैं, मत्स्य चैप्टर 24। ठीक है, मैं इसका समरी पढ़ रहा हूँ, जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। So this chapter describes the Supreme Personality of Godhead's incarnation as fish. It also describes the saving of Maharaj Satyavrat from inundation. Inundation का अर्थ समझ लीजिए, क्या अर्थ है? Inundation मतलब जब ब्रह्मा जी की रात होती है, ठीक है, टोटल inundation की बात नहीं हो रही है। The Supreme Personality of Godhead expands himself by Swamsa and Vibhinamsa. स्वअंश का अर्थ होता है इनकारनेशन, और विभिन्न अंश का मतलब होता है जो लिविंग एंटिटीज। हम लोग भी भगवान के अंश है, लेकिन हम लोग के विभिन्न अंश, और जो स्वांश होते हैं वो होते हैं भगवान के अवतार। ठीक है, नरसिंह, वराह, वामन, ये सब जो है ये सब स्वांश, हम लोग विभिन्न अंश। As stated in Bhagavad Gita, Paritrana Sadhunam Vinashya Chadushkratam, the Supreme Personality of Godhead appears on this planet for the protection of sadhus or devotees and for the destruction of the miscreants or non-devotees. He especially descends to give protection to the cows, brahmanas, demigods, devotees, and Vedic system of religion. Thus he appears in various forms, sometimes as fish, sometimes as boar, sometimes Narsimhadev, sometimes Vamandev, and so on. But in any form or incarnation, although he comes within the atmosphere of material modes of nature, he is unaffected. This is the sign of his supreme controlling power. Although he comes within the material atmosphere, Maya cannot touch him, and therefore no material qualities can be attributed to him in any degree. Once, at the end of the previous kalpa, kalpa matlab कल्प शब्द का अर्थ क्या होता है? नहीं पता है प्रभु जी। एक दिन प्रभु जी। संबित कल्प क्या होता है? ब्रह्मा का एक दिन होता है, फिर एक रात होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन को कल्प कहते हैं। ठीक है, ओके। So once at the end of the previous kalpa, a demon named Hayagriv wanted to take the Vedic knowledge away from Lord Brahma at the time of annihilation. Therefore, the Supreme Personality of Godhead took the incarnation of fish at the beginning of period of Swambhu Manu and saved the Vedas. अब ये समझ लीजिए हिसाब किताब, भगवान ने मत्स्य अवतार 2 बार लिया है। ठीक है, एक अवतार लिया स्वयं, एक अवतार कब लिया है? जब ये हयग्रीव का स्टोरी है। दूसरी बार मत्स्य का अवतार तब लिया था जब उनको सत्यव्रत को बचाना था। उसी तरीके से वराह देव के भी 2 अवतार हुए, श्वेत वराह और रक्त वराह, मतलब व्हाइट कलर के वराह देव हुए हैं एक बार, और एक बार ब्राउन कलर के वराह देव हुए हैं। आप देखिए जाजपुर में श्वेत वराह का मंदिर भी है और रक्त वराह का मंदिर भी है, स्पेशली वो है दोनों वराह का। ठीक है, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा आपको। तो एक बार क्या हुआ, प्रीवियस कल्प जब खत्म होने वाला था, यानी नेक्स्ट कल्प में स्वयंभू मनु बनने वाले थे, मनु। ठीक है, अब आप पूछोगे स्वयंभू मनु तो फर्स्ट मनु है, तो प्रीवियस वाला मतलब क्या? इसका अर्थ ये हुआ, ब्रह्मा जी की रात हुई, अब ब्रह्मा जी का जब दिन शुरू होगा तो पहला मनु जो होंगे वो स्वयंभू मनु। ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि पिछले दिन में कुछ भी नहीं था। पिछले दिन में भी 14 मनु थे, रात के समय कुछ भी नहीं था। फिर रात जब खत्म होने लगी, फिर नेक्स्ट इनंडेशन हो गया, सब कुछ हो गया। फिर जब नया ब्रह्मा का दिन शुरू हुआ, तब से फिर स्वयंभू मनु से शुरू होता है। ये साइकिल चल रहा है, समझे? और स्वयंभू मनु, स्वयंभू नाम है, लेकिन वो मनु 1, मनु 2, मनु 3 पोजीशन है। ठीक है, अभी हम जिस मनवंतर में है, इसके मनु का नाम है वैवस्वत मनु। भगवान गीता में बोल रहे इमम विवस्वते योगम, ये 7th मनु। ये फर्स्ट मनु की घटना बता रहे हैं अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन में।
once at the end of previous kalpa, a demon named Hygriv wanted to take the Vedic knowledge away from Lord Brahma at the time of annihilation. Therefore, the Supreme Personality of Godhead took the incarnation of fish at the beginning of period of Swayambhu Manu, saved the Vedas. Achha, during the reign of Chakshusha Manu, there was a king named Satyavrat. Chakshusha Manu के समय में एक राजा थे जिनका नाम था सत्यव्रत, who was the great pious ruler. To save him, Lord appeared as fish incarnation for the second time. यानी मछली का जो इनकारनेशन हुआ है पहली बार कब हुआ था? स्वयंभू मनु के समय में या उससे पहले, ठीक है। फिर छठे मनवंतर का नाम है चक्षुषा मनु, ठीक है। चक्षुषा मनु में अगेन भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, ये 2 बार हो गया, है ना। किंग सत्यव्रत later became the son of the sun god and was known as Shraddhadev. He was established as Manu by the Supreme Personality of Godhead. तो अभी जो हमारे मनु हैं, जिनका एक नाम है वैवस्वत, दूसरा नाम है सत्यव्रत, तीसरा नाम है श्रद्धादेव, ये तीनों वही व्यक्ति है जिसको छठे मनवंतर में भगवान ने बचाया था। समझ गए? जिसके बारे में भगवान गीता में बोल रहे हैं 4th चैप्टर में कि मैंने इस ज्ञान को सूर्यदेव को विवस्वान को दिया, विवस्वान अपने पुत्र मनु को दिया। तो किस मनु को दिया? ये 7th मनु की बात हो रही है। यानी इसके पहले छठे मनवंतर में उनको बचाया था भगवान ने। छठे मनवंतर नाम है चक्षुषा मनवंतर, नाम लिखे यहाँ पे। पहला स्वयंभू, फिर स्वरोचिषा, फिर उत्तम मनु, फिर ये सब भागवत में दिया है। तपसा या तामस भी कहते हैं उनको। फिर आता है 5वें रैवत मनु, फिर चक्षुषा मनु, फिर वैवस्वत मनु, फिर नेक्स्ट होंगे सावर्णी, है ना। सावर्णी मनु कौन होंगे जानते हैं? नेक्स्ट मनु वो होंगे बलि, द सन ऑफ विरोचन, इंद्र बनेंगे उस कैटेगरी में। मैं इसका एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी जो मनु हैं, मानो जी अभी तो हो रहे हैं वैवस्वत मनु। मैं स्वयंभू मनु के रीजन में बता रहा हूँ कि कौन कौन रहता है। इन दिस मनवंतर द सप्तऋषिज वर मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलह, क्रतु, पुलस, वशिष्ठ। तो ये 7 लोग हैं। और इसमें जो भगवान का अवतार हुआ है, मनवंतर अवतार, स्वयंभू मनु के समय यज्ञ अवतार कहते हैं। ये सब लिया 8 कैंटो में। फिर मैं जस्ट फर्स्ट मनु के बारे में बता रहा हूँ। फर्स्ट मनु वाज स्वयंभू मनु। He had 3 daughters, namely Akuti, Devahuti, Prasuti. Akuti, Devahuti, Prasuti. Devahuti का स्टोरी 3rd कैंटो भागवतम में। Devahuti was given in marriage to the sage Kardam, and she gave birth to 9 daughters and single same not named Kapil, son named Kapil. तो कपिल भी कौन है? जो है भगवान के अवतार। प्रसूति, she gave birth to यज्ञ। यज्ञ भी भगवान के अवतार का नाम है। अभी 24 इनकारनेशन में इनका नाम नहीं है यज्ञ का, पर वो है अवतार। Akuti gave birth to 1 son and 1 daughter. फिर both Kapil and Yajna, who were sons of Devavati and Prasuti respectively, were incarnations of Vishnu. Kapil और Swayambhu Manu, along with his wife Satrupa, went to the forest to practice austerities on the bank of river Sunanda. इस तरीके से इनके वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद स्वरोच, उत्तम मनु, तामस मनु। अब मैं बता रहा हूँ वैवस्वत मनु के विषय में कुछ। ये सारे लिस्ट, ये पूरा इतिहास दिया हुआ है कई पुराणों में। वैवस्वत मनु के बारे में सुनिए। इनके सप्तऋषि में कौन कौन है? कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य, भारद्वाज। ठीक है, हम ये सब इसको गोत्र कहते हैं। जैसे मैं कश्यप गोत्र का हूँ, कोई अत्रि गोत्र का होता है, कोई वशिष्ठ गोत्र का होगा, भारद्वाज गोत्र का होता है। ड्यूरिंग दिस वैवस्वत मनु, लॉर्ड विष्णु का अवतार इज मत्स्य। वैवस्वान बोलते हैं इसको, ऑल्सो नोन एज श्रद्धदेव और वैवस्वत, है ना। had 10 sons named इच्छवाकु, नाभाग, दृष्ट, सरयाति। ये सब नाम है किसके? वैवस्वत मनु के पुत्रों के। इच्छवाकु, आप लोगों ने नाम सुना? इच्छवाकु से जो वंश आया, इच्छवाकु वंश, जिसमें भगवान रामचंद्र प्रकट हुए हैं। इसमें जो डेमिगॉड्स होंगे, इन दिस मनवंतर द रेन ऑफ मनु, among the demigods are Aditya, Vasu, Rudra, Vishwadeva, Marut, Ashwini Kumar, Rivu. King of heaven Indra is known as Purandar. तो अभी के इंद्र का नाम क्या है? पुरंदर। नेक्स्ट जो मनु होंगे उसमें जो इंद्र होंगे उनका नाम क्या होगा? विरोचन के पुत्र बलि, है ना। यानी विरोचन कौन है? प्रहलाद महाराज के पुत्र।
तो प्रहलाद महाराज के जो पोते हैं बलि, वो कमिंग मनवंतर में यानी 8 मनु में इंद्र बनेंगे। समझ आया कुछ? भाई सिंपल, जैसे हमारे दिन का कैलकुलेशन है वैसे यहाँ पे मनु को कैलकुलेशन के हिसाब से काम चल रहा है। वो जी क्या सत्यव्रत मनु मतलब हर एक मनवंतर के बाद डिस्ट्रक्शन होता है क्या? स्ट्रक्चर मतलब जैसे प्रभु जी आपने बताया ना कि 6th मनवंतर में सत्यव्रत मनु को भगवान ने बचाया था हाँ मत्स्य अवतार में, तो क्या हर मनु आप लेकिन आपने तो बताया था कि लाइक 12 घंटे के बाद टोटल एनिहिलेशन होता है, फिर नेक्स्ट दिन में फिर से क्रिएशन होता है। और मनवंतरों के सिंपल सा है, ब्रह्मा जी की जब इवनिंग होती है, जी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में क्रिएशन का काम चलता है, मतलब सृष्टि चलती है। और जब ब्रह्मा जी की रात होने लगती है जो कि 12 घंटे की होती है, उसमें पार्शियल एनिहिलेशन होता है। उस समय कोई सृष्टि नहीं हो रही होती है। तो उस समय क्या होता होगा भाई, कोई लिविंग एंटिटी, नीचे के लिविंग एंटिटी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ऊपर के लोगों के लिविंग एंटिटी बचते हैं और वो लोग ऊपर से बैठ के डिस्ट्रक्शन देखते हैं। मनु इस धरती के प्राणी नहीं है, मनु ऊपर के प्राणी है। और वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है, वो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, एक मूवी आई थी बहुत पहले, मैं भूल गया उसका नाम, हॉलीवुड मूवी थी, जिसमें क्या होता है ऐसा शायद 2021 में या 2022 में पता नहीं क्या बनाया था उनने कि पूरा डिस्ट्रक्शन होता है, फिर एक नाव में है 2012 अच्छा 2012 हाँ। तो उस दिखाया था ना कि ऐसा मतलब डिस्ट्रक्शन होता है और फिर वो है ना पूरा सब कुछ खत्म होने लगता है और फिर लास्ट में वो मतलब इस जीवन का सीड दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, कोई एक सृष्टि बच जाए तो वहां से आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है ना, देखा था ना मूवी में। ऐसा ही होता है, पिछली सृष्टि का इस सृष्टि का कनेक्शन रात के समय ये मनु का काम होता है, जो मनु को पोस्ट हैंडल होती है। आप देखिए कभी राष्ट्रपति भवन में जब पुराना राष्ट्रपति और नया राष्ट्रपति का जब चयन हो जाता है तो पुराना राष्ट्रपति आपस में कुर्सी एक्सचेंज कर लेते हैं। और जो कार से मान लीजिए राष्ट्रपति एक साइड आरएचएस में बैठे हैं वो, और नए राष्ट्रपति जो हुए हैं वो एलएचएस बैठे हैं। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद में वो लोग आपस अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, फिर पुराना वाला एलएचएस में चला जाता है और नया वाला आरएचएस में आ जाता है। एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हर मतलब ब्रह्मा जी के रात के समय ये स्थिति आती है। जी प्रभु जी, मैं प्रभु जी ये पॉइंट तो जी प्रभु जी इस समय अब सुनो, एक इसमें ट्विस्ट क्या है, अगर रात के समय स्थिति आती है तो चक्षुषा मनवंतर में कैसे आ गया, जो कि 6th मनवंतर है, तब उस समय प्रलय कैसे आ गया? क्वेश्चन ये है, यही है ना, यही क्वेश्चन है ना। जी अरे भाई अगर 14 मनु के बाद स्थिति होती समझ आता है, लेकिन ये 6ठे मनवंतर में प्रलय कैसे आ गया? तो भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं, नींद आ गई। मतलब कभी कभी होता है ना, हम लोग को भी दिन में नींद आ जाती है, तो ब्रह्मा जी को अपने कार्यकाल में थोड़ी सी झपकी लग गई। तो झपकी का असर ये हुआ कि अब मान लीजिए, देखिए एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति लोको पायलट है, ट्रेन चलाता है, अपने कार्यकाल के दौर पे उसको झपकी आ जाए, क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। कितने लोग मरेंगे? सारे होंगे। अब देखिए, हम सो जाएं, कोई किसी के जीवन में फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक लोको पायलट सो जाए तो कितने हजारों लोगों के जीवन में फर्क पड़ता है। तो इसी संसार में हम देख सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट का व्यक्ति है, वो अगर सो गया अपने काम के समय पे तो कितने लोगों को जीवन ये होता है। अब हम बात करें ब्रह्मा की, ब्रह्मा कोई मनुष्य नहीं है, ब्रह्मा बहुत ऊपर की चीज है। तो जब ब्रह्मा जी को झपकी आ गई, ये लिखा है भागवत में साफ साफ, जब ब्रह्मा जी को झपकी आ गई, जबकि चक्षुषा मनवंतर का पीरियड है, वो पीरियड ऐसा है कि उस समय प्रलय नहीं आना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मा जी को झपकी लग गई, उस समय प्रलय हो गया। तब भगवान ने सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए, ये चक्षुषा के एंड में हो रहा है जब ब्रह्मा जी की झपकी लगी है, ये लिखा है साफ साफ, समझ आया? प्रभु जी एक बार मैं देखा था कि द्वारका गए थे ब्रह्मा जी, कहीं भी पढ़ा था, मतलब वो द्वारका गए और उनको पता चला कि दैट ही इज नॉट द ओनली वन, और मतलब ऐसे काफी सारे ब्रह्मा हैं, मतलब किसी के 1000 सर हैं, किसी के 10 सर हैं,
तो वो हाँ, भी है क्या सही कि बात है। मतलब ब्रह्मा जी के भी काफी ये हैं? हाँ, तो हम एक केवल छोटे से यूनिवर्स को देख करके आकलन कर रहे हैं। जी जी। हाँ प्रभु जी, अभी ब्रह्मा जी की मतलब अभी एज कितनी हो गई होगी एक तरीके से? 51 ईयर्स ओल्ड। अभी अभी 51 51 ईयर। 50th बर्थडे सेलिब्रेट किया ब्रह्मा जी ने, ये लिखा है भागवतम में। हमारे ब्रह्मा जी की एज है 51 के आसपास है, मतलब अर्ध प्रहर हो गया उनका, मतलब हाफ एज उनने ऑलरेडी क्रॉस कर ली है। हाँ तो प्रभु जी, जो हर दिन जैसे जब डे टाइम में तो ये 14 मनुष्य रिपीट होते हैं, मतलब अगेन फिर सत्यव्रत मनुष्य स्टार्ट होता है। सत्यव्रत एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, लेकिन मनु एक जी पोस्ट है। तो इस जी। ब्रह्मा के दिन में पहले मनु का नाम है सत्यव्रत, पहले मनु का नाम, सॉरी स्वयंभू मनु का नाम इस तरह दिया है। इस दिन में, जिस दिन में हम हैं अभी, आप समझ लीजिए हमारे जैसे कितने दिन, हमारे कितने साल बीतते तो ब्रह्मा जी के एक दिन बीतता है, हिसाब बताए ना, 4,32,000 इंटू 10 टू 1,000 इंटू 2 इसलिए क्योंकि रात भी मान लो तो फिर नेक्स्ट दिन आएगा। इतने लाखों करोड़ों अरबों सालों के बाद ये सृष्टि एक बार खत्म भी होगी बीच में, मतलब पार्शियल एनालिसिस होगा, उसके बाद ब्रह्मा जी का दूसरा दिन आएगा। हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमारे लाइफ काल में हम ये भी नहीं देख पाएंगे कि मनवंतर चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि मनवंतर का भी एज कितना होता है मनवंतर का एज कितना हुआ? एक 14 divided by 12। 4,32,000 into 10 वो हो गया आपका मनवंतर चतुर्युग। का एज सिंपल सा हिसाब और है, into 1000 4,32,000 इंटू 10 into इंटू 10 1,000 डिवाइडेड बाय to 1000। हाँ 14, 14 यानी हाँ 72 चतुर्युगा, 14। ऑलमोस्ट 72 ओके। चतुर्युगा, यानी 72 इंटू 4,32,000 इंटू 10 इतना तो केवल कैलकुलेशन है एक मनु के पीरियड का। तुम क्या लगता है हमारे जीवन में हम मनु चेंज होता देखेंगे? नहीं नहीं प्रभु जी। बिल्कुल नहीं। अब आपको इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं। आप लोग, कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हो रही है, उसका कारण जानते हैं? सिंपल है। देखो अभी हम लोग जिस जीवन में जी रहे हैं, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म चीजों को इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। शॉर्ट टर्म मतलब आप देखिए, एक कोई घटना आती है, तो मैंने कुछ दिन एग्जांपल दिया था, तो लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर वो आ जाता है, मीडिया में वही चीजें चलती रहती है। मतलब एक इनसिग्निफिकेंट चीज को लेकर के लोग यहाँ के टाइम वेस्ट करते हैं और उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, है ना। भागवतम हमारी कॉन्शियसनेस को बहुत ऊपर लेकर के जाने के लिए इस तरीके के हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि देखो भागवतम के अंडरस्टैंडिंग से अगर अपनी कॉन्शियसनेस को आप डोटेल करो, इस संसार में जो चल रहा है, मानो संसार का 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1,000 साल, 10,000 साल कोई वैल्यू रखेगा? इनसिग्निफिकेंट। हम लोग हिस्ट्री को इतना सिग्निफिकेंट मानते हैं, हम लोग पॉलिटिकल सिचुएशन को इतना सिग्निफिकेंट मानते हैं। पिछले 5 साल में भारत ने कितने प्रगति करी, पिछले 10 साल में कितनी प्रगति की, हम आजादी को 50 साल हो गए हैं, हमने क्या किया। भागवतम की कॉन्शियसनेस से अपनी कॉन्शियसनेस को हम डोटेल कर देंगे तो ये 50 साल, 100 साल, ये इंडिपेंडेंस, ये पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जीडीपी कुछ भी काम का नहीं लगेगा। इतनी बड़ी बातें चल रही है यहाँ पे, लाखों साल का कैलकुलेशन चल रहा है, और कहाँ ये 5-10 साल के चींटी के, मतलब चींटी की कॉन्शियसनेस भी नहीं इससे कम होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब अमीबा की कॉन्शियसनेस, और कहाँ हाथी की कॉन्शियसनेस। प्रभु जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, हॉलीवुड की एक मूवी है इंटरस्टेलर करके। प्रभु जी जितने भी मतलब इंटरस्टेलर अच्छा, क्रिस्टोफर नॉलन उसके डायरेक्टर है, मतलब बहुत ब्रिलियंट डायरेक्टर है बोलते हैं हॉलीवुड में। तो प्रभु जी ऐसा है कि सारे ही मतलब हम लोग जितने भी यूथ हैं सबने इंटरस्टेलर देखा है, मैंने भी देखा है। तो प्रभु जी इंटरस्टेलर में ऐसा होता है कि उसको समझने के लिए ना उसको 3-4 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम में हम जो चीज अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे वही चीज उन्होंने एक्सप्लेन किया है उनके वे में। ये जो आपने बताया जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, तो प्रभु जी मतलब एक चीज मतलब ऐसा था कि क्रिस्टोफर नॉलन ने जब ये मूवी बनाई थी तो ये एक फिक्शन मूवी नहीं है, ये पूरा इक्वेशंस और जितने भी साइंटिफिक स्टडी आज तक हुआ है सबके ऊपर बेस्ड करके बहुत रिसर्च करके मूवी बनाई है।
तो मुझे अगर ऐसा देखें तो अगर उन्होंने साइंस में थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा कुछ रिसर्च करके ये सेम चीज प्रभु जी आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे अभी, सेम चीज वो उन्होंने भी एक्सप्लेन की है उस मूवी को। तो प्रभु जी मतलब 3-4 बार नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। प्रभु जी मतलब ये बोलना चाहता था कि भागवतम में ये सब तो पहले से ही दिया हुआ है, तो उन्होंने ज्यादा क्या किया। और यही चीज अगर वो जो उन मतलब नॉर्मल लोगों को बताएंगे कि क्रिस्टोफर, वो सब बोलते हैं कि क्रिस्टोफर नॉलन का ये जो मूवी है इंटरस्टेलर ये एक्चुअल इक्वेशन से बेस्ड है, लेकिन अगर यही चीज आप बताएंगे कि भागवतम में दिया हुआ है और तो वो बिलीव नहीं करेंगे इस चीज को। तो मतलब कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि अब क्या करें, लोगों का दुर्भाग्य है बिलीव नहीं करते। लेकिन देखो कितना साइंटिफिक है भागवतम में, इतना एक्चुअली एक रीडिंग में एक्चुअली नहीं समझ पाएंगे, एक ही रीडिंग लगेगी। केवल पहले रीडिंग में तो इतना पता चलेगा कि कैरेक्टर कौन कौन से हैं, बस थोड़ा बहुत जानकारी मिलेगी। दूसरे अभी तो नाम में पता चल तो मैं एग्जांपल आपको बताऊं, अभी क्या हुआ, प्रैक्टिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ। हाँ, कम से कम नाम पता चल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है हमारा एटलीस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि कैसे भागवतम की बहुत ऊपर। अभी हम लोगों ने वैदिक जियोग्राफी के विषय में थोड़ा सा मैंने कुछ दिन पहले रिसर्च किया था, काफी दिन में लगा रहा बहुत स्टोरी को समझने के लिए। तो एटलीस्ट उतने दिनों में मेरे को ये समझ आ गया कि महाभारत में जो लैंड रीजन्स का वर्णन किया गया है, जो रामायण में किया गया है या अन्य पुराणों में किया गया है कि भारतवर्ष, किम पुरुष वर्ष और इलावत वर्ष और ये से नाम है, इतने दिन के रिसर्च में एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि देखो हम लोग केवल जो दुनिया एक्सपीरियंस करते हैं वो एक बिल्कुल छोटी सी दुनिया है जिसका 6400 किलोमीटर उसका डायमीटर है, और मतलब बहुत छोटी दुनिया। भागवतम के 5th कैंटो तक पहुंचते पहुंचते आपको पता चलेगा अरे मतलब दुनिया का 4 बिलियन माइल्स, सही अगर कैलकुलेट किया, मैं भूल गया अगर एग्जैक्ट 4 बिलियन या 40 बिलियन, 4 बिलियन माइल्स, ये तो केवल अर्थ प्लेनेट मतलब जो गोल हम जिसमें रहते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये इतना डायमीटर है यूनिवर्स का, और जिसका अगर 50% बांट दिया जाए, पूरा एक प्लेन काट दिया जाए तो उतना तो अर्थ प्लेन है, इसको भूमंडल कहते हैं। भागवतम में जब बात शुरू होती है तो उस स्तर पे बात शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को हम लोग जो धरती को परसीव कर रहे हैं अपने लिमिटेड सेंसेस से, जैसे तो उदाहरण के तौर पर कोई कीड़ा मकोड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके बालों के अंदर कोई जुए हो और वो सोचे कि मनुष्य होते हैं क्या, हम नहीं मानते, प्रूफ करो। तो ये बाल की जुए वो कौन सा टेलीस्कोप लगा करके देखेगी और कौन सा माइक्रोस्कोप लगा कर देखेगी और क्या करके पता लगाएगी कि मनुष्य होते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस कितनी है। इसलिए कभी कभी लोग इसको माइथोलॉजी समझते रहे, कैसे ऐसे, क्योंकि उतनी कॉन्शियसनेस ऊपर उठ ही नहीं पाती है कि इन चीजों को समझ पाए। लेकिन आप देखो ना फैक्ट, अब उम्र के हिसाब से वशिष्ठ की उम्र है, अब आप देखोगे कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जो भगवान राम के समय, जैसे परशुराम भगवान राम के समय भी थे, फिर परशुराम कृष्ण के समय भी थे, भीष्म के गुरु थे परशुराम, ठीक है। ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जो मतलब सतयुग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, कलयुग में भी थे। हम जब देखते टीवी सीरियल में तो अधूरा ज्ञान खतरे जान, हम अधूरा देखते, अरे उसमें भी थे, इसमें भी थे, इसमें थे, मरते क्यों नहीं ये लोग? इसका मतलब माइथोलॉजी है। क्यों? क्योंकि अब हमारा कैलकुलेशन क्या है कि इनकी उम्र हम अपने हिसाब से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जबकि ये इस प्लेनेट के रेसिडेंट्स नहीं है। अरे इसी धरती पे ऐसे ऐसे टॉर्टाइज हैं जो 500 साल जीते हैं। यानी एक कोई ऐसा टॉर्टाइज जिसने मतलब भारत की आजादी देखी है, 1857 की लड़ाई देखी है, और हो सकता है औरंगजेब को भी देखा हो सकता है चैतन्य महाप्रभु को दर्शन भी हुआ हो। ऐसे पेड़ तो कम से कम है जिसने कृष्ण के दर्शन किए होंगे, आज तक है। तो इसी धरती के ऊपर 1000 साल जीने वाले, 5000 साल जीने वाले पेड़ भी हैं। तो फिर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो दूसरे प्लैनेट्स के, हमारे प्लैनेट्स के नहीं, अगर वो इतना जी जाए और वो हर एपिसोड में हमको दिख जाए, रामायण में हमको दिख जाए, महाभारत में हमको दिख जाए, विष्णु पुराण में हमको दिख जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं निकलता कि वो माइथोलॉजी है। इसका अर्थ ये निकलता है कि वो लोग इतना जीते हैं और आज भी हैं वो लोग।
वो लोग आज भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आज है तो दिखते क्यों नहीं है? यार तुम्हारी औकात क्या है देखने की यार? तुम्हारे पास आंखें कितनी है? सेम वही पॉइंट, चीटी बोले कि मेरे को, मैं नहीं यार, वो परसीव ही नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो इसके कंपैरिजन में पूरा मतलब ऊपर पंप कर रहा है कि अरे भैया तुम कहाँ छोटी सी जीवन को बहुत महत्वपूर्ण मान चुके हो। छोटा इसलिए देखिए भागवतम में 10 कैंटो में कृष्ण लीला रखी गई है, ताकि फर्स्ट कैंटो से चल के चलते 10 कैंटो कृष्ण लीला तक आपको जाते जाते आपको पहले समझ आए कृष्ण है क्या। कृष्ण को समझने के लिए पहले डायनामिक्स क्यों बताया, क्या कि भगवान की रास लीला पहले क्यों नहीं बताई, सृष्टि लीला पहले बताइए। पूरी सृष्टि लीला फर्स्ट कैंटो में, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो भगवान की सृष्टि के विषय में इतना वर्णन है, फिफ्थ कैंटो में पूरा भागवतम में यूनिवर्स का वर्णन है। वो करते कराते पहुंचते फिर 8वें कैंटो में मनवंतर का वर्णन है। इतना करते घुमा फिरा कर 10th कैंटो में कृष्ण की लीला सुनाइए, पहले क्यों नहीं सुना दी? अरे पहले हम कृष्ण क्या है समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए ग्रेजुअल प्रोग्रेस रखा गया है भागवतम में। क्या कह रहे हैं सौरभ? हाँ प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि इसके मतलब भागवतम पढ़ने के बाद मतलब वर्ल्डली थिंग्स इतना इंफीरियर लगता है। अभी नहीं लगता है, लगेगा अगर ठीक से पढ़ेंगे कुछ साल। वो अगले दिन फिर चेंज हो लग रहा है वो तो खैर इसको कहते हैं शमशान बैराग्य। शमशान में कोई जाता है आदमी तो 2-4 दिन उसको बैराग्य लगता है, अरे संसार में कुछ भी नहीं है, एक न एक दिन तो यही मिट्टी में मिल जाना है, भस्म हो जाना है। फिर वापस आता है शमशान से, वापस फिर अपने घर का कार में लग जाता है, शमशान बैराग्य कहते हैं। तो हमारा जो वैराग्य आ रहा है 2-4 दिनों की भक्ति से, वो वैराग्य बहुत थर्ड क्लास का वैराग्य है, वो लंबा खींचने वाला नहीं है। कल शाम को कुछ और हो जाए, कल शाम को कुछ और था वैराग्य के नाम पे, आज कुछ और हो गया। ये वैराग्य नहीं है, ये तो पढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, धीरे धीरे समय के साथ, है ना। कई कई जीवनों की साधना है, ऐसा नहीं। मैं सुन रहा था कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्प्राउट अप हो गया, मैं बीबीसी का एक ये देखा था। तो वो बोल रहे थे, जब उनको बोला गया था कि आप मतलब रिजाइन कर रहे थे वो 1999 में, जब वो था ना क्या, मतलब कुछ समय के लिए उनकी गवर्नमेंट बनी थी। हाँ, तो कुछ दिन के लिए, कुछ दिन तो एक उनने स्टेटमेंट बोला, है ना, बोले हमारी पार्टी ऐसे वैसी नहीं है जो कुकुर मुत्ते के समान, मशरूम के समान आज साल की साधना है हमारी। तो मेरे को वो डायलॉग उनका अच्छा लगा। हमारी 40 साल की साधना है, इस तरह करके बोल रहे हैं। तो जब एक पॉलिटिकल व्यक्ति को सक्सेसफुल होने के लिए भी 40 साल की साधना लग जाती है, 50 साल की साधना लग जाती है। मुखर्जी को राष्ट्रपति बनने तक 50 साल की साधना लग गई। तो यार हम जिस चीज को समझना चाह रहे हैं वो कितना एडवांस है, आप तो खुद ही देख रहे हैं टॉपिक। तो फिर उसमें कितने सालों की साधना लगेगी, कितने जीवनों की साधना लगेगी। तो कोई व्यक्ति 2-4 दिन माला पकड़ा और बोला मेरे को वैराग्य आ गया है, मेरा संसार में मन नहीं लग रहा है, अब तो समझ लो कितना मतलब अंधकार है। वो कल वाला एग्जांपल याद आ रहा है कि कल वाला एग्जांपल याद आ रहा है जो मतलब मैं इतना गिरा हुआ हूँ और देन थर्ड पर्सन कम्स इन, तीसरा आदमी आके जब बोलता है तो मैंने आज मैं सुन रहा था विवेकानंद प्रभु का ग्लोरिफिकेशन को, तो वो बोले महाराज मेरा फॉल डाउन हो गया। तो महाराज पूछते कहाँ से? मैंने भी देखा था। बोले कहाँ से फॉल डाउन हो गया? फिर वो बोल रहे हैं कि महाराज आपने कहा दुनिया में नंबर 1 बनो तो आप हमारे इतने सब्सक्राइबर है, ऐसा है वैसा है वैसा, बहुत कुछ बोल रहे। तो बोले महाराज खुश होंगे? तो महाराज बोले कृष्ण को एक क्षण नहीं लगेगा सब कुछ छीनते हुए। तो ये बहुत उन्नत सब्जेक्ट मैटर है। अब सही बात है ना, आप खुद देख लो जिस साइंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं कितना एडवांस साइंस है। मनवंतर मतलब समझ लो, और उसमें भी बता दिया कि नेक्स्ट मनु कौन होगा, प्रीवियस मनु कौन था, सबके नाम मेंशन है। ये माइथोलॉजी कैसे हो सकता है? दुनिया की दृष्टि में तो 5000 साल पहले कुछ भी नहीं था। साइंस की अब अच्छा एक में एक और एविडेंस दूंगा आप लोग को, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। साइंस क्या बोलता है? इवोल्यूशन, है ना, जीवन इवॉल्व कर रहा है, मनुष्य इवॉल्व कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल फैक्ट बताओ, इवॉल्व कर रहे हैं या डिवॉल्व कर रहे हैं? क्या वर्ड सही है? क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन हो रहा है या डिवोल्यूशन हो रहा है?
खुद बताओ। हर तरीके से फिजिकल स्ट्रेंथ मनुष्य का इवोल्यूशन है या डिवोल्यूशन है? क्या लगता है आप लोगों को? रिवोल्यूशन ही हो मुझे रहा है। डेवोल्यूशन है क्योंकि फिजिकल जो स्ट्रेंथ को पहले अगर आप थे तो कैलकुलेट, जी वो कम होते हाँ, जा रहा है विद टाइम। मैं सुन रहा था उस दिन विवेक बिंद्रा प्रभु के इसमें एक उसमें काफी दिन पहले सुन रहा था, महाराणा प्रताप के बारे में बता रहे थे, है ना? तो महाराणा प्रताप की तलवार इतनी भारी थी, मतलब 50-60 किलो की तो तलवार, आदमी 120 किलो का, उसमें 50-60 किलो की तलवार पकड़ता है, और उसके बाद उसमें कवच पहनता है, वो भी कम से कम 70-80 किलो का। तो आदमी जितना नहीं, उससे डबल ट्रिपल तो उससे वो धारण किया हुआ है। और उसके बाद अकबर के सेनापति के ऊपर तलवार ऐसे चलाई, घोड़े पे बैठा हुआ था सेनापति, ऐसे तलवार चलाई कि वो सेनापति सहित घोड़ा वो 50 वॉरियर आज होता होगा। मतलब कितना आजकल मशीन गन के ऊपर ये बम गिरा देना किसी के ऊपर, और धोखे से पीछे से अटैक कर देना और सामान्य जनता को मार देना, ये स्ट्रेंथ के लक्षण नहीं है, ये तो कावर्ड मतलब डरपोक व्यक्ति के लक्षण है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ पे देखा जाए तो मनुष्य पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में आता है इंटेलिजेंस। आज मनुष्य कंप्यूटर पर डिपेंडेंट है, इसलिए अपना को इंटेलिजेंस समझते हैं। लेकिन पहले के लोग देखो, उनका कैसे कैलकुलेशन, आप खुद ही देखो, आपके मतलब 1-2 जनरेशन पहले के लोग भी किराने की दुकान में बैठे रहेंगे, 50-100 आइटम का कैलकुलेशन ढक 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 ढक, आप मतलब ठकाठक सॉल्व कर देते वो लोग। हम लोग इतने देर में कैलकुलेटर टाइप नहीं कर पाएंगे। क्यों मारवाड़ी साहब, क्या लगता है आपको, है ऐसा? पिताजी को देखकर मतलब एक्सपीरियंस है मेरा, है मेरे खुद के है पिताजी ना को देखकर एक्सपीरियंस है मेरा। अरे हम बहुत बार बेइज्जती भी हुई है। हाँ, हम लोग की तो इंटेलिजेंस लेवल में हम आगे जाने की इवोल्यूशन है कि डिवोल्यूशन है। अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले एक मैडम थी, शकुंतला देवी, सुना है आप लोगों ने? ह्यूमन कंप्यूटर मूवी भी आई उनकी अभी रिसेंटली। अच्छा, तो उनका तो खैर मतलब वो तो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तो कोई कुछ कॉपी नहीं कर सकता। एनीवे, तो मैं बता रहा हूँ इंटेलिजेंस लेवल पे डिवोल्यूशन हो रहा है। पहले के जेई के पेपर और आज के जेई के पेपर सेम सर? पहले मुश्किल था ब्रो जी, अभी थोड़ा इजी हो गया है। थोड़ा इजी हो गया। अब आपके पास एमसीक्यूज हैं, पहले तो कितने, एक क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थ्योरी वाले। हम खुद जान रहे हैं इंटेलिजेंस लेवल में कमी आई है, व्यक्ति खान पान में गिरावट आई है, व्यक्ति के विचारों में गिरावट आई है, उसके चरित्र में गिरावट आई है। तो इवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है? तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इवोल्यूशन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारे अंडरस्टैंडिंग है कि सारे ब्रह्मा से आए हैं, ब्रह्मा से हमारी सब कुछ सृष्टि हुई है, और ब्रह्मा मोस्ट इवॉल्व प्राणी है। यानी ब्रह्मा से जो नीचे नीचे आ रहे हैं वो इवोल्यूशन नहीं है उनका, वो डिवोल्यूशन है। हमारी फिलॉसफी थ्योरेटिकली भी बिल्कुल सही है, और प्रैक्टिकली भी हम देख रहे हैं भाई दुनिया ऐसे चल रही है। अब जो साइंस बोल रहे इवोल्यूशन हुआ है, कहाँ से हुआ है, कौन से स्टैंडर्ड से इवोल्यूशन हुआ है? हो सकता है मैकेनिकल डिपेंडेंसी हुई है ना, उसको आप ये बोलो कि हमने रिसर्च करके हमने टेक्नोलॉजी बढ़ाई। टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू डिपेंडेंसी, तो आपकी डिपेंडेंसी पे बढ़ावा चाहिए, अगेन आपका डिवोल्यूशन हुआ है, रिवोल्यूशन नहीं हुआ है। किसी भी तरीके से हम इवोल्यूशन को प्रूव नहीं कर सकते एक्चुअली, लेकिन ये थ्योरी चल रही है संसार में। 5000 साल पहले कुछ भी नहीं था, सब जंगल में रहते थे और शिकार करके खाते थे। अरे कौन सी थ्योरी कहाँ से बना दी और लोगों ने मान भी लिया है। यहाँ बात हो रही है बड़े बड़े मनवंतरों की और युगों की और कल्पों की और क्या क्या, और बात ये लोग अभी भी लगे हुए हैं कि पहले वो बाबा आदम का जमाना। प्रभु जी मतलब मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही आपको मतलब वो इन्फॉर्म मतलब एक चीज बता रहा था कि अगर आप मतलब जैसे मैं हॉस्टल में है, मेरे हॉस्टल में तो बंदे इंटरस्टेलर को बिलीव कर लेते हैं, बोलते हैं कि क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है, लेकिन यही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको माइथोलॉजी बोलेंगे क्योंकि कोई बताने वाला नहीं बेचारों को। तो जी हम इसके लोग, ऊपर एक मेरे को एक याद आ गया है, मतलब एक नेट आप में लोग मैं बनाओ पढ़ा कोई था। बढ़िया मूवी बनाओ इसके ऊपर, कुछ करो, कोई मूवी बनाओ, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ, कोई कोई आप कोई तरीका ढूंढो इस तरीके से कन्विंस करने का।
तो ऐसा नहीं कि लोग कन्विंस नहीं होंगे, अगर हम उनको साइंटिफिकली प्रेजेंट करेंगे और बहुत प्रैक्टिकली प्रेजेंट करेंगे चीजों को, तो कोई तो बुद्धिमान व्यक्ति आएगा सामने। देखो ये सब चीज समझने के लिए बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए और हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट कि थर्ड क्लास लोग सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये प्रमाणित करता है कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल शार्प है। जय जना कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस को, ये फैक्ट है, इससे पता चल रहा है कि हम इंटेलिजेंट है। अपनी खुद की बड़ाई नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन ये फैक्ट है। आप देख लीजिए बहुत सारी फिलोसफी चल रही दुनिया में, मान लीजिए सपोज करो बाबा रामदेव की फिलोसफी है, या सदगुरु की फिलोसफी, शंकराचार्य की फिलोसफी, किसी फिलोसफी और शास्त्र को ही नहीं मानते वो लोग, केवल मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। जो क्या कहते हैं, आजकल के शंकराचार्य बोल रहा हूँ, पहले के नहीं, या एटमोस जानते हैं तो इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं शास्त्रों के। अरे कोई व्यक्ति भागवतम के डेप्थ में, कौन से शास्त्र में इतना मनवंतरों का वर्णन मिल रहा है और कौन से शास्त्र में, पुराणों में मिलता है वर्णन। वो कुछ लोग तो आर्य समाजी पुराण को ही नहीं मानते, कुछ वेद को मान के खत्म हो जाता है उनका। वो वेद को क्या मानते, क्या समझते हैं? तो आप देखिए जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट भी दिख रहे हैं वो इतना डेप्थ में नहीं जाते। हाँ, तो डे 1 में भी शुरू किया, देखो नारद मुनि की लाइफ से हमने शुरू किया तो हमको पता चल गया कि ब्रह्मा जी का उम्र के बारे में, कल्प के बारे में, मनवंतर के बारे में, एज के बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में, हमको सब कुछ पता चल गया एक एक कौन से। और वो लोगों का कितना दुर्भाग्य होगा प्रबल कि वो लोग तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं, भागवतों को मानते ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, चैप्टर ही क्लोज हो गया। इस तरह के व्यक्ति को क्या समझाओगे? प्रभु जी, मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में दिया था कृष्णा कॉन्शियसनेस के ऊपर, तो उसमें एक आदमी ने कमेंट किया कि सो ट्रू, और फिर मैं उसका कुछ देर के बाद उसका स्टेटस देख रहा हूँ, ही हैज गिवन समथिंग वेरी मटेरियलिस्टिक। तो ऐसा है कि मतलब नहीं, we should not feel bad about it because it is natural, and yes, people realize that material life is not false. I try to first understand this. Material life is also यस्मिन् यत्तो ये यर्हि येन च यस्य यस्मात्, whatever it is there, है ना, संचोदितस्तव अखिलम भवतः स्वरूप, सब everything is Krishna. This material life is also nothing but Krishna, and spiritual life is also nothing but Krishna. So our philosophy is not to reject material life. Try to understand. Our philosophy is to ascend. हम मेटेरियलिस्टिक कोई व्यक्ति अगर कंसेप्शन में, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक फेज है, हम भी उस फेज में थे एक समय पे, और आज भी हम हैं। कोई बोले कि अभी हम लोग डिवोटी बन गए हैं, तो बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल बोगस बात है। सबको पता है हम कितने डिवोटी बने हैं। तो केवल ड्रेस कोड चेंज करने से और माला झोली टांग लेने से और तिलक लगाने से कोई डिवोटी नहीं बन जाता है, कि घर में भागवतम सेट रखने से कोई डिवोटी नहीं बन जाता है। डिवोटी बनना बहुत बड़ी चीज है। अभी हम लोग डिवोटी का डी नहीं सीखे और डी छोड़ो ABCD सीखे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत दूर की चीज है ये। तो इसलिए हमारा अधिकार नहीं बनता उन लोगों को कमेंट करने का कि वो लोग गलत है। हाँ, लेकिन हम लोग एट द सेम टाइम फील करना चाहिए हमको कि हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं ऊपर उठने के लिए। अब वास्तव में रात को मैं पढ़ रहा था, अगर ऑनेस्टली हम एनालिसिस करें, हम लोग डिवोटी बन गए, हमारे मन में कोई बुरा विचार नहीं आ रहा है, हम तो 24 आवर कृष्ण कॉन्शियस हैं। कोई है यहाँ पे बोल सकता है? हाँ, कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बोल सकते। हम वास्तव में बहुत पतित अवस्था में, तो इसलिए हम दूसरे को डिस्करेज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन हम एनकरेज करके उसको एटलीस्ट वहां तक लाने की कोशिश कर सकते जहां तक हम हैं। ठीक है जी जी प्रभु। और कुछ क्या, सौरभ क्या बोल रहा था? हाँ, मैं बोल रहा था कि कल पढ़ रहा था, मतलब भागवतम के 10th कैंटो के 89 चैप्टर में, मतलब उसमें देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्ण अर्जुन एंड लॉर्ड विष्णु, मतलब महाविष्णु। यस, महाविष्णु। सो वही, मतलब ही हैड द सन्स ऑफ द ब्राह्मणस, और मतलब ही हैड द डिजायर टू सी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा। मतलब उसमें यही दिखाया गया है कि इवन महाविष्णु एक्सेप्ट्स की महाविष्णु had desire to see Krishna. हाँ, Not राइट, that वही Krishna had desire to see महाविष्णु. नहीं, मैं वही बोला कि महाविष्णु हैड द डिजायर, राइट। तो मतलब वही वहां पे कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड करके वो डिनोट कर रहे हैं महाविष्णु भी।
like even he accepts it. वहां पे महाविष्णु कुछ बोल रहे हैं तो क्या लिखा है? मतलब मैं वही आधा पढ़ा था, मतलब he had the sons of the brahmanas, and मतलब वो किस लिए बुलाए थे ये मुझे नहीं पता चल पा रहा है, ओके, मतलब किस लिए उनको उनको देखने देखने की के लिए डिजायर बुलाए थी। थे। अच्छा, जस्ट टू सी कृष्णा। ठीक है, और कुछ? हाँ, चैप्टर 2 में लिखे कि कॉन्सेप्ट में हमारा ऐसा होता है कि होता है, तो वो हमको थोड़ा दूसरे सुन बॉडी के में बोलो, ट्रांसफर थोड़ा करते हैं। माइक पास में करके बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जैसे चैप्टर 2 में लिखा गया भगवद गीता में, जो कॉन्शियसनेस होता है डेथ टाइम के समय, तो वही कॉन्शियसनेस हमको नेक्स्ट बॉडी में लेके जाता है। हाँ, तो फिर नर्क का क्या मतलब ये है, जो अभी जो रंजीत लोग भेजे थे ग्रुप में, तो नर्क कैसे फिर जाते हैं? हाँ, समझ लो एक बात, इंटर्नशिप करते हो ना कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले, हाँ, तो मान लो अगर तुमको अगर पशु के शरीर में जाना है, हाँ, ठीक है, तो पशु के शरीर में तुमको इमीडिएटली भेज देंगे, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अच्छे जीवन जी रहे हो, पशु फिल्दी जीवन जी रहा है, तो तुम्हें कुछ समय नरक में भेजेंगे तुम, ताकि फिल्दी जीवन एक्सपीरियंस करो कैसा होता है, फिर उसके बाद तुमको पशु का बॉडी मिलेगा। मैं सोच तो रहा था कि उधर इंटरमीडिएट तो दंड स्टेज दे देते हैं, उधर तो रिएक्शंस मिल दंड जाते क्या हैं, फिर देते इधर हैं? नहीं, रिएक्शन पूरा नहीं मिला है, रिएक्शन का कुछ पार्ट मिला है, ठीक है, पूरा रिएक्शन नहीं मिला है, रिएक्शन का कुछ एक पार्ट मिला है, और वो पार्ट भी इसलिए मिला है ताकि आपको आपको क्या बोलते हैं, आपके कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर किया जा सके कि नेक्स्ट बॉडी ऐसा होगा। कभी नहीं लिखा है कहीं पे कि पूरे आपको रिएक्शन मिल गए नरक में, आप कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ठीक है। ये 5th कैंटो में इसका, 6th कैंटो में थोड़ा सा इसका, 5th कैंटो लास्ट में और 6th कैंटो में थोड़ा सा इसका अपडेट मिलेगा आपको। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्या भागवतम? नहीं, प्रभु सब पढ़ने में धीरे सब धीरे भूल करके जाते हैं। प्रोग्रेस करेंगे। ये तो नॉवल जैसा है, मतलब थोड़ा फिक्शियस नॉवल लगेगा, पर फिक्शियस कुछ भी नहीं है। थोड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। कहानियां सुन रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अभी तो कॉन्वर्सेशन वगैरह से चल रहे हैं अभी इंटरेस्टिंग तक। लग बस रहा ये है। पहली बार थोड़ा फिलोसफी आया था इनकारनेशन का। अभी तो फिलोसफीज भर के हैं इसमें, तो धीरे धीरे और भी बहुत सारे रहेंगे। अच्छा है, एंजॉय करिए, छुट्टियों का फुल लाभ उठाइए। तो जी आई थिंक ऐसा हो सकता, हम एक्चुअली डायरेक्टली ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, इस कारण से हो सकता है पूजी। तुम लोग को खत्म भी करना है जल्दी जल्दी, ट्रांसलेशन जैसे परपट भी पढ़ना है, पढ़ लो, फिर अपना होमवर्क के रूप में परपट भी पढ़ लिया करो। यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ लिया करो, फिर समय निकाल के अपना समय से वो परपट बेटर पढ़ लिया रहेगा, करो। हम लोग आराम से अपने स्पेस में बैठ के परपट्स धीरे धीरे करके हाँ, नहीं तो यहाँ पे लेट हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। निपटा तो एक दिन में कि परफेक्ट पढ़ते पढ़ते प्राण भी निकल जाएगा, तो धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक्चुअली एटलीस्ट ट्रांसलेशन एक बार हो जाएगा तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा कौन सा कैरेक्टर कहाँ है, और फिर बाय द टाइम आप लोग साथ में परफेक्ट पढ़ते रहो, वो तो आपका नित्य सेवा है भागवतम में परफेक्ट पढ़ना। इनफैक्ट मैं भी कभी बैठ करके रेगुलर बेसिस पे परफेक्ट पढ़ते हो, जितने क्लास है तो मान लीजिए आप लोग को मैं जान करके वो श्लोक पे क्लास दे रहा हूँ, मतलब प्रेयर्स पे, क्योंकि प्रेयर्स में जनरली कोई क्लास नहीं मतलब करना चाहता है, तो प्रेयर्स बहुत फिलोसफिकल लगती है, बहुत बोरिंग लगती है। मैं भी बहुत ज़्यादा कहानियाँ सुनाता नहीं हूँ, तो वो बोरिंग हो ही जाता है, परंतु मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं उसको बाद में रिवाइज करता हूँ। अभी तक जितने मैंने क्लासेस करी है आप लोग के साथ प्रेयर की, प्रहलाद में सारे याद कर लिए मैंने, तो अपना लाभ देखता हूँ मैं बीच बीच में। ठीक है,
ठीक है रुपेश, मजा आ रहा है क्या? प्रभु जी हाँ जी प्रभु, हरे एंजॉय कृष्ण। कर रहे हो? हाँ जी प्रभु, थोड़ा थोड़ा मतलब इतना तो समझ में नहीं आ रहा है, बट ट्राई कर रहा हूँ थोड़ा। तुम बस पढ़ते रहो, देखो फिर कुछ दिनों में समझ में आने हाँ लग जी जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्रभु, वही हाँ एक्चुअली तुम्हारा स्टेटस आप देखा मैंने, बहुत बढ़िया गिटार बजा रहे थे। थैंक यू प्रभु जी, हरि ओम। ब्रो ये संडे को क्लास रहता है, तो मतलब अभी अभी मतलब ऑफलाइन क्लास आज से ही शुरू हुआ। मतलब ऑनलाइन क्लास चल रहा था लास्ट मंथ से, तो अभी मतलब वो गार्डियन थोड़ा एक दो जन राजी हुए, तब से थोड़ा मतलब ऑफलाइन क्लास आज से ही शुरू हुआ, तो ऐसे ही थोड़ा कर रहा था। हाँ जी bro। तो ऑनलाइन एक्चुअली गिटार आप, क्लासेस हैं? हाँ ऑनलाइन चल रहा था, मतलब लास्ट 2 मंथ से चल रहा था, क्योंकि गार्डियन लोग भी बोल रहे थे कि मतलब घर में ये लोग बैठते रहते हैं, कुछ करते नहीं, तो बेटर आप अगर मतलब कंफर्टेबल होंगे तो आप क्लास शुरू कर दीजिए। मैं बोला ठीक है। तो वही बस जो यहाँ पे घर के पास जो 2-3 जन जो बच्चे थे, उनका ही ऑनलाइन क्लास चल रहा था जूम में ही। ओके। हिमांशु जानता है गिटार बजाना? नहीं प्रभु जी, नहीं पता है। कभी इच्छा नहीं हुई? मुझे इच्छा होती है लेकिन मतलब सिखाने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए। ये है ना हमारा रुपेश प्रभु। प्रत्युष सीख रहा था। प्रत्युष नहीं कर रहा क्लासेस रुपेश? नहीं नहीं एक्चुअली उन लोगों का मतलब हमारे प्रभु जी के साथ थोड़ा कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है। मतलब अभी देव को भी मैं कॉल किया था, प्रत्युष को भी कॉल किया था, तो वो लोग शायद मतलब गांव में है, और थोड़ा मतलब पता नहीं, मैं कांटेक्ट भी एक दो बार किया था, उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आया। और चीज है कि मैं अभी एक्चुअली चीज है कि अभी पढ़ाई भी थोड़ा रहता है, तो मैं संडे को एक ही क्लास बस ले पाता हूँ, ऑनलाइन क्लास जो भी है एक ही क्लास ले पाता हूँ। मतलब पहले से थोड़ा जो 2-3 क्लासेस हो रहा था गिटार का संडे में, तो अभी बस एक ही क्लास कर रहा हूँ, सो दैट कि थोड़ा एंगेज रहूँ, और पढ़ाई पढ़ाई थोड़ा चल रहा है ऐसे रोज। अभी मल्टीपल ठीक है, क्लास अच्छा है। एक्चुअली नहीं कर रहा हूँ, वही चीज है प्रोजी। तो वो लोग अगर ज्वाइन करना चाहे तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो इसलिए मैं थोड़ा अपने तरफ से थोड़ा चुप हूँ। वही है वो लोग गिटार लेके भी नहीं गए ना, तो क्या जाके क्या हाँ करेंगे? एक्चुअली वही तो है, वही तो है। तो देखते हैं, फिर भी तो अभी तो अक्टूबर तक अगर वो लोग अगर आ जाते हैं दशहरा के बाद, तो थोड़ा शुरू कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। मुझे एक्चुअली इस तरह के डिस्कशन मजा आता है। थ्योरी थ्योरी बोलते जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण। धन्यवाद।